Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah and may Allah bless you. Welcome to all of you in English class and I will teach you unit number 2 and it is of class 10th Chinese New Year. Students, before starting the lesson, let me explain, as we have many festivals throughout the year like Eid al-Fitr, Eid al-Azha, 12th Rabiul Awwal, etc. Like us, China has its own festival, among which the day of New Year is very important, and in this chapter we will learn about Chinese New Year, यानी चीनियों के बारे में हम पढ़ेंगे, and we will discuss in detail their activities like New Year Eve dinner, family gathering, gift giving and decoration of their houses, cleaning of their houses, etc. So students, we will start our lesson with reading. Turn over the page. Start from first paragraph. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese family. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. Moving towards explanation, Chinese New Year is a holiday. चीनी साले नौ की छुट्टी होती है that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar, जिसमें चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज पर खुशी मनाई जाती है, यानी लूनर कैलेंडर के मुताबिक जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिली, यानी चीनी खानदानों के लिए इसे अहम तरीन छुट्टियों या तातीलात में से एक छुट्टी शुमार किया जाता है. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, और इस छुट्टी को कैसे मनाया जाता है, यानी ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, गिफ्ट गिविंग्स, तहाइफ देकर, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स और अलामती खुराक खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस. और डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस मीन त्यौहार के मुताबिक की गई आराइश, यानी खुशगवार आराइश. ये छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तिमात से, तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और खुशगवार आराइशों के अहतमाम से मनाई जाती है. ऑल फोकस्ड, यानी तमाम सरगर्मियों का जो मकसद है वो क्या है, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाले मौसम बहार की खुशी मनाना है. इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल हॉलीडेज. ट्रेडिशनल हॉलीडेज मीन रवायती छुट्टियाँ, यानी चीन में अब भी रवायती तातीलात लाइक चाइनीज न्यू ईयर, यानी चीन में अब भी रवायती तातीलात जैसे कि चीनी साल नौ का जो दिन है उसको तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है. सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, और जो कमरी कैलेंडर है उसकी जो बुनियाद है वो चांद की अशकाल पर है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जिसकी गर्दिश का दौरानिया सूरज की निस्बत कम है. चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर. चीनियों का जो नया साल है वो किसी एक ही दिन नहीं आता बट टिपिकली फॉल्स, लेकिन आम तौर पर समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th, यानी ये आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है. यानी वो सेम डे पे स्टार्ट नहीं होता. ये लाजमी नहीं है कि हर साल जो है वो एक ही दिन स्टार्ट हो. जब जो है वो सूरज अपना साइकिल चांद अपना साइकिल कंप्लीट करता है तो ये स्टार्ट होता है. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और जो तकरीबात हैं वो महीने के आखिर तक जारी रहती हैं. Students, I will sum up this paragraph in simple words, that in this paragraph we are told about the importance of Chinese New Year, and it is told that they follow the lunar calendar which is based on the phases of the moon, and this day never comes on the same day, यानी हर साल जो है वो एक ही दिन नहीं आता बल्कि डिफरेंट डेज पे ये हो सकता है. साइड बॉक्स क्वेश्चन है,
वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, यानी हर साल एक ही दिन क्यों नहीं आता, इसकी वजह क्या है। सिंस द चाइनीज लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, क्योंकि जो है वो चीनी कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं। विच हैज अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका जो गर्दिश का दौरानिया है वो सूरज की निस्बत कम होता है। सो चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसलिए वो हर साल जो है एक ही वक्त पे नहीं आता। Students, now we will move to paragraph number 2 and here are some traditions associated with Chinese New Year। यहाँ चीनियों के साल नू से मुतल्लिका कुछ रवायात हैं। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, यानी घरों की सफाई और नए कपड़े। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly cleaning their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the houses ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, प्रियर पहले, कबल, टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज, यानी नए साल के पहले दिन से कबल खानदानों में रिवाज है कि वो अपने घर की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पिछला साल यानी लास्ट ईयर, एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, यानी ऐसा वो क्यों करते हैं कि कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़श्ता साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर निकालना और आने वाले साल में खुशकिस्मती को खुशामदीद कहना या घर को खुशकिस्मती के लिए तैयार करना है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे, यानी ये सारी सफाई जो है वो नए साल के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल कर ली जाती है। सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि हादसाती तौर पर भी इस बात का इम्कान ना रहे कि आने वाले साल में अच्छी किस्मत को वो बाहर निकाल दें। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, यानी स्याह रंग, यानी इस रंग को वो पहनने की इजाजत नहीं देते, यानी वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, यानी स्याह लिबास के मौत से ताल्लुक की वजह से इससे पहन इजाजत नहीं दे, यानी आमतौर पर वो कहते हैं कि ये सोग के मौके पे पहना जाता है। हाउएवर वेयरिंग रेड इज इनकरेज्ड एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, ताहम जो है सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है बदरूहों से छुटकारा पाने के लिए है या खुशी से रिलेटेड है, तो इसलिए वो जो है ब्लैक की बजाय रेड कलर को प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सम अप दिस पैराग्राफ एंड इन दिस पैराग्राफ वी कैन से it is talked about their thoughts that how they prepare their houses on New Year and clean their houses before New Year, and told about two colors, black is not allowed while red is encouraged, यानी जो है वो इसमें पूरे पैराग्राफ में हमें चीनियों के नए साल का जो आगाज है इस बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने साल का आगाज करते हैं, उसमें उनकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं। साइड बॉक्स में क्वेश्चन देखें, व्हाट इज चाइनीज बिलीव अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर डे, यानी चीनियों का क्या अकीदा इस बारे में, साल से जो है वो एक दिन पहले ही नया साल शुरू होने से एक दिन पहले ही वो क्यों सफाई करते हैं घर की। Chinese belief about cleaning houses before New Year Day to clear out any bad luck from the previous year and to make the houses ready to accept good luck for the coming year, यानी बुरी किस्मत यानी बदकिस्मती को बाहर निकालना और आने वाले साल में खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने के लिए घरों को तैयार करना। इसलिए उनका ये अकीदा है कि वो घरों की सफाई करें और वो सफाई जो नए साल के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, यानी एक दिन पहले ही उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर कस्टम ऑफ चाइनीज decorating the house. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Another popular custom, एक दूसरी मशहूर जो रवायत है, रस्म है, is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, यानी उनकी एक दूसरी मशहूर रस्म है, रिवाज है,
अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों पर इश्तहारात और अलामतें लगाना जिस पर चीनी लफ्ज़ फो लिखा जाता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसके मानी या जिसका मतलब किस्मत और खुशी के हैं। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ ऑल्सो कॉमन प्लेस, यानी घरों के लिए फूल खरीदना भी एक मामूल है। सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो आने वाले मौसम बहार और एक नए साल के आगाज की अलामत हैं। दिस पैराग्राफ शोज दैट हाउ दे आर केयरफुल इन डेकोरेटिंग द हाउसेज विद सिंबॉलिक जेस्चर। नेक्स्ट कस्टम, न्यू ईयर सेव डिनर, यानी शाम का खाना। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake means शामिल होना, in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typically for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. On the eve of the Chinese New Year, यानी चीनियों का जो नया साल है उसकी शाम पर, इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स, यानी रिश्तेदारों से मिलने का रिवाज है, एंड पार्टेक और शामिल होने का, इन अ लार्ज डिनर, एक इज्तमाई खाने पर, एक बड़े खाने पर, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहाँ कई किस्म के मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर सेव डिनर, यानी चीनियों का क्या रिवाज है कि वो खाने में 8 से 9 डिशेज बनाते हैं या 8 से 9 किस्म के खाने बनाते हैं। Because in Chinese language the word 8 means prosperity, क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब हमेशा जिंदा रहना या देर तक जिंदा रहना है। स्टूडेंट्स, फर्दरमोर वी आर टोल्ड अबाउट द डिनर दैट चाइनीज मेक फैमिली गैदरिंग्स एंड दे डू डिनर विद ऑल रिलेटिव्स एंड ईट सिंबॉलिक फूड फॉर गुड लक, यानी इस पैराग्राफ में हमें जो चाइनीज़ का न्यू ईयर है उस पर वो जो खाने खाते हैं उस बारे में बताया गया है। यू विल सी यू हैव अ क्वेश्चन इन द साइड बॉक्स, वाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेज, यानी 8 से 9 पे क्यों मुश्तमिल होता है, 8 से 9 खानों पे क्यों मुश्तमिल होता है, इसकी क्या वजह है। तो यू कैन फाइंड द आंसर इन द पैसेज। ये बिकॉज in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting, ये वजह है, यानी चीनी जुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब जो है वो देर तक रहना है या देर तक जिंदा रहना है। स्टूडेंट्स, कमिंग टूवर्ड्स अनदर कस्टम, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. It is a traditional practice for adults to give children, यानी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब एक रवायत है, यानी जो जिसको चीनी फॉलो करते हैं। बालगों में, एडल्ट्स मीन बालिग या बड़े, बालगों में ये रस्म पाई जाती है कि वो क्या करते हैं, बच्चों को सुर्ख रंग के लिफाफे देते हैं जिसमें पैसे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, जिसका क्या मतलब होता है या ये इस बात की अलामत होते हैं, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की। यानी बालगों में ये रस्म पाई जाती है कि वह बच्चों को रुपयों से भरे हुए सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट एंड ब्रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी इनमें एक और रस्म भी है, यानी बड़ों में ये मामूल भी है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करते हैं। इन्वेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड अंटिल द रेसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, और वो लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करने वाला देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए या उसका घर छोड़ ना दे, मतलब चला जाए। स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड अबाउट द गुड लक गिफ्ट्स विच आर गिवन टू यंग पीपल बाय देयर एल्डर्स, यानी बड़े लोग जो हैं वो अपने छोटों को कैसे जो है वो गिफ्ट के तौर पर इन्वेलप देते हैं, जस्ट बिकॉज फॉर द वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरिंग द एनिमल, यानी जानवरों की इज्जत करना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक।
These animals are often represented in decorations. Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. यानी चीनियों का जो नया साल है उसमें वो कैसे मतलब हर साल को एक जानवर से जोड़ देते हैं. चाइनीज ज़ोडिएक मतलब चीनियों का जो बुरूज है, यानी जो कैलेंडर में दिए गए बुरूज है उसकी बात हम कर रहे हैं कि एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक. हर साल चीन कैलेंडर में दिए गए बुरूज के 12 जानवरों में से किसी एक से ताल्लुक़ रखता है, यानी वो हर साल को किसी एक ख़ास जानवर से जो है वो एसोसिएट करते हैं. दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशंस. और ये जानवर जो है अक्सर आराइशों की शक्ल में नुमाइंदगी करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, उन जानवरों की शेप बनाते हैं या उसको डेकोरेट करते हैं. सम पीपल बिलीव दैट दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल मे हैव द करेक्टर ट्रेड्स ऑफ दैट एनिमल. ट्रेड्स मीन खूबियाँ, करेक्टर ट्रेड्स मीन फितरी तौर पर मतलब जो खूबियाँ उनमें पाई जाती हैं. बाज़ लोग अकीदा रखते हैं कि जो लोग किसी ख़ास जानवर के साल में पैदा होते हैं इनमें से इस जानवर की फितरी खसूसियात मौजूद हो सकती हैं. मतलब उन जिस साल से वो रिलेट करते हैं, जिस साल में पैदा होते हैं, उस साल से जुड़ा हुआ जो जानवर है उसी जानवर की खूबियाँ उस इंसान में भी पाई जाती हैं. And in this paragraph we are told about the superstitions of Chinese people, that how they associated their years with specific animals. In Chinese belief about people having character traits of animals, affect or an opinion. क्या ये एक राय है या एक हकीकत है? जैसा कि देखा जाए कि तो ये एक सुपरस्टिशन है, मतलब ये एक बेसलेस बिलीफ है. तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इट इज़ एन ओपिनियन नॉट अ फैक्ट. इट इज़ अ बेसलेस बिलीफ and has nothing to with people having character traits of animals. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जिस साल वो पैदा होता है इंसान तो उस जानवर की जो खूबियाँ हैं वो उस इंसान में पाई जाती हों. लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास. Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, यानी चीनी साल नो एक ऐसा वक्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, जब ख़ानदान को उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ट, यानी जब ख़ानदान को उस साल का शुक्रिया अदा करने के लिए जो गुजर चुका है, एंड रीइनविगोरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और फिर खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए. रीइनविगोरेट मीन टू गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, यानी ताकत. यानी चीनी साल नो एक ऐसा वक्त है जब खानदान को उस साल का जो गुजर गया है शुक्र अदा करने और फिर खुद को आने वाले साल के लिए ताकतवर बनाने की गर्ज से इकट्ठा होना चाहिए. Okay students, in this chapter we learned the custom and traditions of Chinese, and we read about the new year of Chinese, that how they end the year before starting the new year and welcome it by some symbolic gestures. Okay students, I hope you learned a lot about the Chinese family, about the custom and traditions of China.